ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਸੇਠੀ, ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਮੀ ਅਰੋੜਾ, ਪਵਨ ਜਲੋਟਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਮਾ ਸੇਠੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਵਨ ਗੁਲਾਟੀ, पवन सेठी XMC, जितेंद्र सेठी, अमिताभ सेठी, संजय सेठी, गौरव सेठी, हीरालाल कुमार, राजेश कुमार, कमल जग्गी, अरुणा अनंत ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ 2 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ MA ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ B.Ed ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹਿੰਦੀ ਟੀਚਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕਰਮਜੀਤਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਆਸ਼ਾ ਰਮਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨਵਦੀਪ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਰਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਵਦੀਪ ਸੇਠੀ ਜੀ ਉੱਘੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਓਸ਼ੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
गहरा हो चुका है कि मानव उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। और इस भजन के अंदर, इस प्रार्थना के अंदर हमारे शास्त्रों की वही प्रार्थना दोहराई गई जो हमारे मनीषियों ने, संतों ने प्रभु के श्री चरणों में सदैव रखी है। उन्होंने प्रार्थना की, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें इस संसार की अज्ञानता से ज्ञान की प्रकाश की ओर ले चलो। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे प्रभु, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जीवन का एक ऐसा सत्य उन्होंने अपनी प्रार्थना में भगवान के पावन श्री चरणों में रखा जो व्यक्ति जानकर भी नहीं जान पाता। प्रत्येक व्यक्ति दावा करता है, मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैं गुणी ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान से संपन्न हूँ, मैं इतने वेद शास्त्रों को कंठस्थ कर चुका हूँ। लेकिन हमारे संत कहते मूढ़मती, जितनी घोर अज्ञानता में तू जी रहा है उतनी घोर अज्ञानता में तो निशाचर भी नहीं जीते होंगे। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही, इंसान को अपनी अज्ञानता पता ही नहीं। उसको यह तो पता है कि जो बना है वो मिटेगा, उसको यह पता है कि जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु प्राप्त होगी, लेकिन उसको यह नहीं पता कि जब मिटना है, जब इस देह का त्याग करना है, इस देह के अंदर रहने वाली जो हमारी आत्मा है वो आत्मा कहाँ जाएगी, किस ओर जाएगी। उसके लिए यदि अंधकार भरी गलियां होंगी, उन गलियारों के अंदर आत्मा सफर कैसे करेगी? जो समाज का हमारा एक ऐसा वर्ग जो इस बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन प्रभु भक्तों, फिर यह प्रश्न क्यों आता है कि जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है तो उसकी गति करवाने के लिए कितना सब कुछ करते हैं। देह तो जा चुकी होती है, शरीर तो जा चुका होता है, तो फिर गति किस चीज की करवाते हैं? वही आत्मा जिसको व्यक्ति मानने से इनकार कर देता है। और हमारे संत महापुरुष हमें इसी अज्ञानता से बाहर निकालकर, जन्म मरण से बाहर निकालकर अमृत तत्व की ओर ले जाना चाहते हैं। वह हमें समझाना चाहते हैं, यदि जन्म लिया है, यदि मृत्यु को प्राप्त करना है, इसे भी एक उत्सव बनाया जा सकता है। इस शोक की घड़ी के अंदर भी अपनी आत्मा को सुखद अनुभूति दी जा सकती है। लेकिन कैसे? आइए ऐसे विचारों को जानने से पूर्व एक अपने भजन को हम सभी मिलकर श्रवण करते हैं। देखिए, आपसे एक बात पूछूं, हाँ जी, देखिए हम बुला रहे हैं कि बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय। देखिए, जय किसकी है? उस परमात्मा की, उस ईश्वर की। ना तो ये आपकी है, ना ये हमारी है। आज अगर हमें 2 घड़ियां मिली हैं उस ईश्वर को याद करने के लिए, तो क्यों ना अपना तन मन यहाँ पे रख के उसको याद करें। आइए मिलके जय घोष बुलाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की, सच्चे दरबार की जय। मेरे
सब सोवन हारा देखे स्वप्न अनेक प्रकार। कहते जिस प्रकार से रात पड़ती है तो रात को व्यक्ति निद्रा की अवस्था में चला जाता है और निद्रा की अवस्था में उसे बहुत प्रकार के नाना प्रकार के स्वप्न आते हैं। वो स्वप्न कभी उसको राजा बना देते हैं, कभी उसको रंक बना देते हैं, लेकिन जब वो जागृत अवस्था में आता है, भोर होती है, सुबह होती है, जब वो जागता है तो उसी बिस्तर पर अपने आप को लेटा हुआ पाता है जिस पर वो रात को सोया था। स्वप्न स्वप्न ही रह जाता है, स्वप्न उसकी कल्पना भर रह जाता है। जानते हैं हमारे संतों ने यह बात क्यों लिखी? वो कहते हैं इंसान तो इस संसार के अंदर मोह की निद्रा में इतना गहरा सो गया, तूने इस निद्रा में इतने बड़े बड़े स्वप्न देख लिए, इतनी कल्पनाओं को तूने सजा लिया कि तेरे लिए जो असल सच था वो बहुत दूर चला गया। जो परम सत्य है जीवन का, ईश्वर जो भगवान जीवन का अटल सत्य है, उससे तो बहुत दूर चला गया। तेरी सांसारिक रात की तो भोर हो गई, लेकिन तेरी आत्मा की भोर कब होगी? तेरे जीवन को जागरण की ओर लेके जाने वाली जो सुबह है वो कब होगी? जरा सोच कर तो देख। कितने श्वास लेकर संसार में आया था, कितने श्वास व्यतीत हो चुके हैं, कितने तेरे पास बाकी बचे हैं, और उन बाकी श्वासों में कितने सपने पूरे कर सकता है तू? सारी कल्पनाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। और जो करने के लिए संसार में आया था, इस मानव की देही के अंदर ईश्वर को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, उसे जान ही नहीं पाया, उसको पहचान ही नहीं पाया। तो ऐसी नींद में सो गया जैसे कई बार होता है ना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम चल रही है, किसी बच्चे ने मेडिकल की पढ़ाई की है, उसके जब एग्जाम आते हैं ना, वैसे तो आजकल हर बात पर यही बात हो गई कि रात को नींद नहीं आती जब कोई परीक्षा देनी होती है, विशेषकर जब कोई ऐसा विशेष सब्जेक्ट रखा होता है तो बिल्कुल नहीं आती। रात भर जाग जाग के एग्जाम दिए। जिस दिन लास्ट एग्जाम होता है उस दिन बच्चे के मन में, स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा होता है? आज तो पेट भर खाएंगे और आराम से सो जाएंगे। पेरेंट्स निश्चित हो जाते हैं कि इसका एग्जाम निकल चुका है, अब चाहे 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, इतनी रातें सो नहीं पाया, आराम से सोने देते हैं जब तक इसको नींद आए। और वो बेफिक्री की नींद सोता है, गहरी नींद, जो उसको साल में कभी कभी नसीब होती है। पर आश्चर्य की बात है, एक विद्यार्थी को पता है कि एग्जाम से निकलने के लिए मुझे जागना होगा, मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे परीक्षा से उत्तीर्ण होना है, सफल होना है, तभी तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन पाऊंगा ना, तभी तो अपने आगे MBBS, MD या BMS लिखवा पाऊंगा। कुदरत का वो दृश्य हमें सुंदर लगा, प्रकृति का वो सीन हमें सुंदर लगा, मनमोहक लगा, हम रह नहीं पाए उसको कैमरे में कैप्चर करिएगा। पर कभी सोच कर तो देखो, विचार करके तो देखो, जितने इतनी सुंदर कुदरत बनाई, जिन ईश्वर ने इतना सुंदर संसार बनाया, जिन ईश्वर ने इतनी सुंदर कायनात हम सभी को यहाँ पर दे दी, आजाद जीवन दे दिया, सुंदर मानव का शरीर दे दिया, संसार के सब सौंदर्य सुख दे दिए, वो भगवान स्वयं कितने सुंदर होंगे, वो भगवान स्वयं कितने सुंदर होंगे। क्या उनको देखने का मन नहीं होता? क्या उनको मिलने की इच्छा नहीं होती? क्या बस बाहर मुखी होकर ही चले जाएंगे? इसीलिए तो संत सहजोबाई जी ने प्रश्न किया, आई जगत में क्या किया, तन पारा या पेट सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। कहते व्यक्ति सोच तो सही, संसार में आया और चला गया, विशेष क्या किया? संसार में कुछ नाम कमा लिया, कितनी पीढ़ियों ने याद रखा? 2, 4, 5 पीढ़ियां याद रखेगी। आज का समय ऐसा तेज हो चुका है कि अगर बच्चों को पूछा जाए ना, पिताजी का नाम क्या है, फटाफट बता देंगे, दादाजी का बताने में सोचना पड़ेगा, पर दादाजी का नाम बताने के लिए उनको अपने पिता के पास जाना पड़ेगा। पर दादाजी क्या होते हैं, उनका नाम क्या है? परिवारों के अंदर जो आपसी एकता, भाईचारा वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि व्यक्ति के
किंतु प्रभु के भक्तों, इस पर विचार जरूर कर लेना। इस संसार के अंदर इस बात का उत्तर संसार सुन सकता है, भगवान नहीं सुनेंगे। ईश्वर इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इंसान के पास समय नहीं था मेरी भक्ति के लिए, मेरी आराधना करने के लिए। अरे मैंने तो मानव का शरीर ही मंदिर बनाकर दिया था, इसके हृदय में तो मैं स्वयं रहता था। यदि मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं आ पाया, मुझे मिलकर भी मुझे नहीं मिल पाया, मेरा होते हुए भी मुझसे दूर रहा, तो इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें तो मुझे जानने की भी कोशिश नहीं की। ये संसार के मोह के लिए रोता रहा, लेकिन मेरे प्रेम के लिए, मेरे सच्चे प्रेम के लिए, मेरी भक्ति के लिए इसकी आंखों में 2 अश्रुओं की बूंदें नहीं आई। तो मैं इस पर अपना प्रेम कब तक लुटाता रहूंगा? क्योंकि कर्मों का हिसाब तो उसके पास पड़े वही खाते से ही होना है। कोई संसार का व्यक्ति हमारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं लगा पाएगा। जिसके पास जाना है, उसके पास जाने से पहले 2 गज की जगह तो बना ले कि वहां पर जाकर खड़े हो पाए। और अन्य भक्त के भाव हमें क्या प्रेरणा दे रही हैं, आए भजन की अगली लाइन हमें सुने। झुका देते। लेकिन कहते हैं ना कि संतों का कबीला खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से वैर। संत तो सबके होते हैं लेकिन किसी के भी नहीं होते। संतों का ना तो कोई अपना होता है ना कोई बेगाना होता है। फकीरों की दुनिया इस संसार से, संसार के होते हुए भी संसार से अलग होती है। संतों का जीवन संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं होता लेकिन संसार का होता भी है। ये बात बहुत गहरी है। लेकिन संत का आगमन जीवन से बड़े सौभाग्य से होता है। संत सबको प्राप्त नहीं होते, गुरु सबको प्राप्त नहीं होते। ध्यान देना है, चोला धारण कर लेने मात्र से कोई संत नहीं बन जाता। अपने पीछे हजारों करोड़ों लोगों की
महापुरुषों ने 2 शब्दों में समेट दी। उन्होंने कहा, गुरुर्देवो गुरुर्शिवो। गुरु इस संसार की देव सत्ता और गुरु ही शिव सनातन है। संत इस संसार की सबसे बड़ी संपदा है, विशेषकर हमारे भारत की। इसीलिए तो किसी ने बहुत सुंदर लिखा, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज संसार में जो स्वयं व्यक्ति ने, मानव ने अपने जीवन में जो आग लगाई है ना, उसी आग में स्वयं जल रहा है। यदि जो ये सभाएं मिलती है, चाहे कारण कोई भी बनता हो, जो धार्मिक स्थान बने, किसी भी रूप में बने, हमारे महापुरुषों की, संतों की वाणियां मिली, चाहे वो वेद शास्त्र, चाहे वो गीता, चाहे वो कुरान, चाहे वो बाइबल, चाहे वो साईं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जल रही मानवता को शीतलता देने का काम करते हैं। कोई तो स्थान होगा जहां पर वो आग नहीं पहुंचेगी, वो संतों के चरण होते हैं, वो संतों की शरण होती है, जहां पर संसार की ज्वाला नहीं पहुंचती। किंतु विडंबना है, व्यक्ति इस ज्वाला में जलता रहेगा, ज्वाला में जलकर एक दिन राख हो जाएगा, आगे का सफर वही नीच दुनिया में फिर से शुरू कर लेगा, लेकिन संतों की शरण में जल्दी जाना नहीं चाहता। एक संकीर्ण सोच बन गई, वहां पर जाएंगे संसार तो नहीं रुक जाएगा, संतों के संग हो लिए तो कहीं फकीर भी तो नहीं बन जाएंगे, संतों की शरणागति हो गई, भक्ति करनी शुरू कर दी तो हम जैसे लोग अपना रुतबा, मान सम्मान या फिर अपना जो संसार के कर्म है वो तो नहीं छूट जाएंगे। किस ग्रंथ में लिखा है? व्यक्ति संसार में रहता हुआ नित्य प्रतिदिन जल रहा है, आत्मा रो रही है, शांति नहीं मिल रही, लेकिन अपने मन के एक छोटे से विचार को व्यक्ति जीत नहीं पा रहा। महापुरुषों की शरणागति होना उसको अच्छा नहीं लगता, जाता भी है ना, क्षमा करना, लेकिन पढ़ सकते हैं। इंसान संतों की शरण में जाता भी है ना, तो अपना संसार लेकर जाता है। वहां पर जाकर अगर कुछ लेने की बात आती है तो संसार ही मांगता है, वहां पर जाकर भी ईश्वर नहीं मांगता, वहां पर पहुंचकर भी भगवान नहीं मांगता, वहां पर जाकर भी अपने घर परिवार, अपने शरीर, अपने संसार के लिए रोता है, ईश्वर के लिए फिर भी नहीं रोता कि जिसने ये संसार बनाकर दे दिया। भक्त नरसिंह जी, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग बीती ना आई मिलन की पूर्ण मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। प्रभु, मैंने कितने मंदिरों के द्वार खटखटाए, कितनी मूर्तियों का पूजन कर लिया, लेकिन सूरत नजर नहीं आई। श्री कृष्ण के रूप में मैंने आपको द्वापर युग में पूजा, श्री राम के रूप में मैंने आपको त्रेता युग में पूज लिया, 52 अवतार मैंने आपको सतयुग में पूज लिया, कलयुग में आप संतों और गुरुओं के रूप में आ गए, लेकिन वर्तमान युग में आप कहाँ हो? एट प्रेजेंट मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मेरी आत्मा रोती है, बिलखती है, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने सुना है भगवान मेरी माता, मेरे पिता, मेरा बांधव, मेरा सखा होते हैं, तो अपने माता पिता, सखा, अपने मित्रों से बात करने के लिए ये दूरियां नहीं रहती। जब चाहे, जहां चाहे अपनों के पास जाकर बात की जा सकती है। मुझे कोई स्थान तो बताओ, वहां पर जाकर मैं आपसे बात कर पाऊं। मीराबाई जी ने यही तो कहा था। मीराबाई जी के पास भगवान श्री कृष्ण आए, मीराबाई जी ने कहा, प्रभु आते हो और चले जाते हो, क्या यह जो मिलन है वो स्थायी नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने घनश्याम को सदा के लिए देख पाऊं, सदा के लिए उनसे बात कर पाऊं? यह जो पलों की दूरी है ये भी मिट जाए। आप इतिहास पढ़कर देखिए, शास्त्र ग्रंथ पढ़कर देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मीरा, मेरे स्वयं की बनाई प्रकृति का एक
जाने योग्य हूँ। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण रथ के साथी बने, विराट रूप में दर्शन दिए, उसका मोह भंग नहीं हुआ। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन तू मुझे क्या समझता है, मेरा तेरे जीवन में क्या स्थान है? अर्जुन ने हंसकर कह दिया, केशव तुम तो मेरे मित्र हो। प्रभु श्री कृष्ण हंस दिए, मात्र मित्र नहीं हूँ, मैं तेरे जीवन रथ का सारथी भी हूँ, मैं जगत गुरु हूँ। अर्जुन को यकीन नहीं आया, विश्वास नहीं आया। अर्जुन मोह में व्याकुल है, अपने पुत्र के वियोग में रो रहा है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु रूप धारण करते हैं और अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा, ज्योति शामापि ज्योति तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्व निश्चितम्। मैं ज्योतियों की विराट ज्योति परम प्रकाश सत्ता हूँ, सबके हृदय में जानने योग्य हूँ। प्रत्येक भूत प्राणी मेरा दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए बिना गुरु संबंधम ना मोक्षति। बिना गुरु से संबंध बनाए, बिना गुरु धारण किए मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मीराबाई को यही कहा, अर्जुन को भी यही कहा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने वक्तव्य में यदि यह बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने यह बात और भी कही। कहते मैं प्रकाश हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और मैं देखने योग्य हूँ, जानने योग्य हूँ। आप देखिए, समाज के अंदर किसी बात को साबित करने के लिए प्रूफ देना पड़ता है ना, देना पड़ता है ना। किसी बात को ठोस रूप से साबित करने के लिए उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है, प्रमाण चाहिए होता है। कोई ऐसा प्रमाण जो अपनी सत्यता को साबित कर पाए। लेकिन भगवान के प्रति इतनी निष्ठा रखने वाले भगवान के भक्त कभी भगवान के लिए प्रमाण नहीं मांग पाए। हम तो इसी बात में इंसान रहा कि संतों के पास जाकर क्या प्रश्न करना। लेकिन यदि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न ना किए होते तो श्रीमद् भागवत गीता जैसा ग्रंथ मिलता कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरु चरणों में जाकर संसार नहीं मांगना, परिप्रश्नेन बड़ा प्रश्न करना है। साधारण छोटे छोटे प्रश्न नहीं करने। जो आपके कर्म में है, जो भाग्य में है, जिसकी आपने मेहनत की है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस पर दूसरे का हक नहीं है, दूसरे का अधिकार है ही नहीं। जो हमारा है वो हमें मिलेगा, लेकिन जो हमारा असल में है वो मिला ही नहीं, क्योंकि उसको मिलने की युक्ति हमारे पास नहीं है, एक संत के पास होती है। इसीलिए हमने सबसे पहले यह बात कही कि संत मात्र चोलाधारी नहीं होता। आज व्यक्ति की भक्ति का हरण हो रहा है। माँ सीता को रामचरितमानस के अंदर भक्ति के रूप में पेश किया गया। माँ सीता भक्ति है, श्री राम भगवान है। और रावण जब माँ सीता को हरण करने के लिए आया तो किस वेश में आया था? संत के भेष में आया था, साधु बनकर आया था वो। ये मात्र इतिहास की या हमारे शास्त्रों की घटना नहीं है। आज भी भक्ति का हरण हो रहा है। आज भी व्यक्ति मात्र भेष के पीछे लग जाता है, भीड़ के पीछे लग जाता है। लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं, वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जब किसी संत सद्गुरु के पास जाओ तो जाकर ब्रह्म ज्ञान की मांग करो, ईश्वर दर्शन की मांग करो। और जब ईश्वर अंदर से नजर आएंगे ना, या दिव्य दृष्टि खुलेगी। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर यहाँ पर तिलक लगाया जाता है, त्रिपुंड लगाया जाता है। जो सिख भाई है वो वहाँ पर घंटा लगाते हैं। कभी सोचा यही स्थान क्यों चुना गया, अन्य स्थान क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। मात्र मानव एक ऐसा प्राणी है जिसकी देह के अंदर पंच तत्व हैं, बाकी सब इससे नीचे हैं। और सबसे ऊपर के इस तल को आकाश तत्व माना गया और इसको हृदय का द्वार कहा गया। यहाँ पर भगवान का वास है और यहाँ पर ईड़ा पिंगला सूक्ष्मणा तीनों नाड़ियों का जब संगम होता है तब यहाँ पर ईश्वर की भर को ज्योति प्रकट होती है। लेकिन वो ज्योति संत की कृपा से
दर्शन करता है। जब घट में ईश्वर का दर्शन होता है तब व्यक्ति ध्यान लगाता है। ध्यान लगाकर अंधेरा नहीं आता, ध्यान लगाकर संसार के विचार नहीं चलते, आत्मा ईश्वर से मिल जाती है तो वो शीतल और शांत हो जाता है। संसार के कर्मों को करता हुआ भी भक्ति के पथ पर चला जाता है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल करना चाहता है, संत कबीर जी की वाणी आपने सुनी होगी। उन्होंने स्पष्ट अपनी वाणी में लिखा, जब हम आए जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये इतने साधारण वक्तव्य नहीं है जिनका हम इतना साधारण अर्थ लगा लेते हैं। व्यक्ति सोच लेता है जी अच्छा व्यवहार रखो, कोई समाज कल्याण के लिए अच्छा बड़ा कार्य करो, कोई ऐसा काम करो जिसके लिए संसार, क्षमा करना एक और गाड़ी है जिसका नंबर है 88085 WIFT डिजायर, अच्छा सॉरी स्विफ्ट डिजायर है, स्विफ्ट डिजायर 8808। जिनका भी ये नंबर है कृपया गाड़ी साइड पे कर लें, थोड़ी दिक्कत आ रही है वहां पर। संत कबीर जी ने लिखा, कहते व्यक्ति ये सोचता है कि हमने कोई संसार में बड़ा नाम कमा लिया, किंतु आप स्वयं बताइए भगवान के घर में ये संसार का नाम जाएगा जी? हाँ जी, जब ये मिट्टी की देही को यहाँ मिट्टी में छोड़कर जाना है, काम क्रोध लोभ को अहम रूपी विकारों को यहाँ पर छोड़कर जाना है, तो उस घर में कौन सा नाम जाएगा? कोई सांसारिक नाम नहीं जाएगा। संत कबीर जी ने तो बड़ी गहरी बात की, कहते जीते जी मैंने अपने प्रभु को प्राप्त कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, मैंने उनके चरणों में अपना स्थान बना लिया, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भगवान का दर्शन करके मैं निश्चित हो गया। अब मैं जीऊं या मरूं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है इस देह को त्यागने के बाद भी मेरा स्थान प्रभु के चरणों में ही होगा, क्योंकि मैं जीते जी उनको प्राप्त कर चुका हूँ। ये जीवन की उपलब्धि है। हमने बात आरंभ की थी कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है। ये संसार तो सदैव चलता रहा और चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे साथ ना कोई चला ना कोई चलेगा। सब देह के साथ चले और देह के साथ छूट गए, आत्मा के साथ तो मात्र ईश्वर चले, वो ईश्वर जो सत्य सनातन हमारे जीवन की धुरी है। और इसीलिए तो संत कबीर जी ने कहा, कहते जब जन्म हुआ संसार खुशी मना रहा था, लेकिन हम रो रहे थे क्योंकि जिनसे जुड़े थे उनसे बिछुड़ गए थे। लेकिन जब हम गए हम हंस रहे थे, क्योंकि हमने अपने जीवन का लक्ष्य जो करने के लिए आए थे उसको प्राप्त कर लिया था। आज चिंतन की बारी तो हमारी है। जीवन में जितनी भी उपलब्धियां मिल जाएं, संसार की नजर में तो वो कम ही रहेगी ना। व्यक्ति का मन तो कभी तृप्त नहीं होगा। भौतिक तरक्की के कारण व्यक्ति की आत्मा शांत नहीं हो पाएगी। भौतिक तरक्की के चलते हुए यदि आत्मा को शीतलता देनी है, यदि एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ पर ना तो मिले की खुशी हो ना गए का गम हो, वो अवस्था मात्र संत सद्गुरु के चरणों में बन पाती है, महापुरुषों के श्री चरणों से जुड़कर ही बन पाती है। हम जितने भी तर्क जितने भी लॉजिक रख लें, लेकिन आत्मा की सुख और आत्मा की आनंदित अवस्था के आगे हमारी भौतिक बुद्धि को हारना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम अतर्क के बुद्धि मन वाणी, भगवान जो है वो तर्क का विषय नहीं है, वो वाणी का विषय नहीं है, वो देह का विषय नहीं है, लेकिन देह के अंदर है। अपने जीवन को यदि सफल बनाना चाहते हैं तो ऐसे गुरु को अपने जीवन में धारण करें जो मात्र भौतिक सुख न दे। अपनी धारणाओं से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करें। हमारे महापुरुष क्या संकेत देकर गए उनको धारण करने की कोशिश करें। भौतिक सुख भौतिक कर्मों से मिलेंगे, आध्यात्मिक सुख आत्मा के कर्म से
दर्शन किया जा सकता है। फिर हमें इस भजन के जो शब्द हैं, जो बोल हैं, फिर समझ आएंगे तन मंदिर कैसे है, हृदय वृंदावन कैसे है। और इस वृंदावन में यदि हमें जाने का रास्ता मिल गया तो घट में काशी, घट में तीर्थ होंगे, घट में आनंद होगा, बाहर कर्म होंगे लेकिन अंदर आनंद होगा। फिर मृत्यु शोक का कारण नहीं बनेगी, मृत्यु आत्मा के सुख का कारण बन जाएगी। तो आइए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देते हुए भगवान के श्री चरणों में यह प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, प्रत्येक जीवात्मा को उनके जीवन में ऐसा मार्ग अवश्य दें, वो तन में ही वृंदावन को जान पाए। अंत में एक बार फिर भक्त के जो भाव हैं इस भजन के अंदर फिर से उनको दोहराते हैं और ध्यान से सुनने का यत्न करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात् धियो